Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my viewers, my students of 10th class. Get ready, the next theorem of chapter number 9, 9.2 theorem. Students, the statement of theorem 9.2 is a straight line drawn from the center. A straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord, and which type of chord? Which is not a diameter. You people must remember, मैंने अपनी previous video के अंदर मैं discuss कर चुका हूँ कि what is the difference between chord and a diameter. So students, here the chord which is involved is not a diameter and is perpendicular to the chord. What we need to prove that is center of circle से जो हम chord के ऊपर एक straight line draw करेंगे वो perpendicular होगी chord के ऊपर. वो क्या होगी? Perpendicular होगी chord के ऊपर. So students, इस स्टेटमेंट को सामने रखते हुए हम हमेशा काम करते हैं. हम गिवन लिखते हैं, हम टू प्रूव लिखते हैं, हम फिगर को ड्रॉ करते हैं और कंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करते हैं, उसके अंदर चेंजेस करते हैं फिगर के अंदर. सो what is the instruction in the statement? What we need to draw? We need to draw a circle of a suitable radius. यहाँ पे आप ये नहीं है कि आप बहुत ही बड़ा सर्कल बना लें या बहुत ही छोटा सर्कल बना रहे हैं. इतना बड़ा सर्कल बना रहे हैं कि जो आपकी पेज की कैपेसिटी से आउट हो जाए, या इतना छोटा बना लें कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन या लेबलिंग है वो आपको क्लियरली विजिबल ना हो. सो सूटेबल रेडियस का आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है. जस्ट लाइक मी, इन द ग्रीन कलर यू कैन सी देयर इज अ सर्कल ऑफ अ स्पेसिफिक रेडियस. नाउ स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल ड्रॉ करने के बाद हमने एक कार्ड लेनी है. जैसा कि आपको रेड कलर के अंदर कार्ड नजर आ रही है, कार्ड ए बी. सो हमने क्या करना है कि पॉइंट O से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जो ग्रीन कलर में आपको नजर आ रही है, ON, एंड इस ON लाइन जो हमने ड्रॉ की है सेंटर ऑफ द सर्कल O से टू कार्ड ऑफ सर्कल AB, ये क्या कर रही है? उसको बाइसेक्ट कर रही है. ये कहां पे लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है आपके पास, a straight line drawn from the center of a circle to bisect a chord. So this is the information which is given to us कि हमारे पास जो ON है वो AB chord को bisect कर रहा है. और you people very well know that what do you mean by the bisect? Bisect mean कि N पॉइंट के ऊपर जो है ये ON आकर AB को इंटरसेक्ट कर रही है, तो N is the midpoint of AB, that is AN is equal to BN. So students, we need to write the given, and the information which is given is written here. A circle with center O. A circle with center O. हमने क्या ड्रॉ किया? एक सर्कल ड्रॉ किया और सेंटर को क्या नाम दिया? हमने उसको O का नाम दिया. AB is a chord of that circle. आप देख सकते हैं what is AB in red color? AB is the chord of the circle. N is the midpoint of AB. Chord AB का N जो है वो क्या है? midpoint है. Which is joined to O, जिसको हमने क्या किया है? N को स्केल रख के O के साथ ज्वाइन कर लिया. Now what we need to prove, and it is to prove which is ON is perpendicular to AB. ये आप देख सकते हैं लास्ट में लिखा हुआ है perpendicular to the chord. हमने प्रूव करना है कि this ON in green color is perpendicular to the chord AB which is in red color. So हमने एक्चुअली प्रूव ये करना है, that is we need to prove measure angle 1 and measure angle 2 both are right angles. And what are measure angle 1 and measure angle 2? At the point of intersection of ON and AB, there are two angles on the either side of this ON which are labeled as angle 1 and angle 2. हमने प्रूव करना है कि this angle 1 and angle 2 both are right angles. Definitely ON is perpendicular to AB, then angle 1 and 2 should be right angles. So this is our target. We need to achieve this target. Now the next part is construction, and construction is not the compulsory part of each and every theorem. In some theorem we need to construct something in the figure to highlight or to prove the theorem. So students, what is the construction? Construction is join O to A and point B. The point A and point B which are the end points of the chord AB, and also these are the point of the circles. हमने O को क्या किया? ब्लैक कलर में आप देख सकते हैं मैंने O को A और B के साथ ज्वाइन कर लिया है. Now students,
इस कंस्ट्रक्शन की वजह से हमारे पास क्या हो गया, देयर आर टू ट्रायंगल्स व्हिच आर OAN and OBN. These are the two triangles which we achieved after this construction. और हम इसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं in the next part, which is very important part, proof and statements and reasons. जो भी बात यहाँ पे लिखी जाएगी उसको सामने क्या किया जाएगा, जस्टिफाई किया जाएगा और एक solid reason से. Now in triangle OAN you can see OAN in correspondence with, this symbol stands for correspondence with triangle OBN. OBN. स्टूडेंट्स, जब भी हम दो ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डेंस लेते हैं हमारा टारगेट होता है उन दोनों ट्राइंगल्स को आपस में इक्वल प्रूफ करना, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना. करस्पॉन्डेंस या होमोलॉगस कंपोनेंट्स के अंदर जो आप सिमिलरिटी देखते हैं या उनको आपस में जो मैच करते हैं, ये करस्पॉन्डेंस बिल्कुल इस तरह से, जिस तरह से आप दो एक जैसे कमरों की करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं, लेट अस सपोज, तो आप हमेशा एक कमरे की दरवाजे की करस्पॉन्डेंस जो है दूसरे कमरे के दरवाजे के साथ लेंगे. एक कमरे के फर्श की करस्पॉन्डेंस आप दूसरे कमरे के फर्श के साथ लेंगे. एक कमरे का अगर वो कोना है जो दरवाजे के सामने वाला कोना है तो उसकी आप दूसरे कमरे की दरवाजे के सामने वाले कोने के साथ ही करस्पॉन्डेंस ले सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि आप एक कमरे की छत को करस्पॉन्डेंस ले रहे हैं दूसरे कमरे के फर्श के साथ, ऐसा नहीं होगा. आपने उनको होमोलॉगस कंपोनेंट्स को आपस में क्या करना है, रिलेट करना है, उनको आपस में कंपेयर करना है. सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ. सो in this triangle there is a side OA. You can see this side is OA, ठीक है, which is sloped, and the other triangle contains the side OB. आप देख सकते हैं जो उसकी दूसरी तरफ जो ट्राइंगल है उसकी जो स्लोप साइड है वो OB है, ठीक है. दोनों करस्पॉन्ड कर रही हैं एक दूसरे के साथ. आप इस करस्पॉन्डेंस को यहाँ पर भी देख सकते हैं. The first two alphabets are OA and in other triangle the first two are OB. So OA की correspondence OB के साथ ली जा सकती है and both are equal. Why these are equal? Because they are radii of the same circle. मैं अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बात डिस्कस कर चुका हूँ जो सर्कल के टॉपिक पे थी और उससे रिलेटेड टर्म्स पे थी. वहां पे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि किसी भी सर्कल के अंदर जो होते हैं उसके रेडियाई जो होते हैं या रेडियस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल इन मैयर होते हैं. अगर किसी सर्कल के रेडियाई इक्वल इन मैयर नहीं है तो वो सर्कल नहीं है. सो OA एंड OB कंफर्म है because they are radii. आप देख सकते हैं center of the circle is joined to a point of the circle and on the other side center of the circle is joined to the point of the circle and this is radius as well as this also radius and both will be confirmed बात है कि both are congruent to each other. Now we move forward. Next हमारे पास है AN. आप देख सकते हैं AN number 2 and number 3, number 2 and number 3. AN is congruent to BN, यानी AN की correspondence BN के साथ है and they are equal. Why they are equal? अगर आप फिगर पे गौर करें तो AN is equal to BN. थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूं कि N is the midpoint. It is lying in between point A and point B. So if N is midpoint, then it is equidistant from both the end points of the card, both the end points of line segment AB. So hence it is proved that AN is equal to BN. गिवन भी लिख सकते हैं आप इसकी रीजन, क्योंकि हमारे पास गिवन में ये बात लिखी हुई है कि N जो है वो मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB का, और साथ लिख भी सकते हैं आप N is the midpoint of AB. गिवन लिखना भी काफी है. Now students, next जो हमारे पास है ON is congruent to ON. ON is congruent to ON. Now ON, which is in the figure in green color, it is the common side of both triangles. अगर मैं इसको अरेज करता हूँ तो आपके पास ना ट्राइंगल 1 कंप्लीट होती है ना ट्राइंगल 2 कंप्लीट होती है. जस्ट लाइक अगर आपके पास दो एडजेसेंट रूम्स हैं तो उनके बीच में एक दीवार होती है, एक ऐसी दीवार होती है जो एक कमरे में भी होती है और दूसरे कमरे में भी होती है. जितनी लेंथ उसकी एक कमरे में उतनी ही लेंथ उसकी दूसरे कमरे में भी होगी. आप बेशक मेजर कर सकते हैं. दिस इज मैटर ऑफ कॉमन सेंस. दिस इज द कॉमन ऑब्जर्वेशन. नाउ स्टूडेंट्स, ON जितनी लेंथ इस ट्राइंगल में रखता है डेफिनेटली उतनी ही लेंथ उसकी उस ट्राइंगल के अंदर भी है. सो दिस इज द कॉमन साइड ऑफ बोथ ट्राइंगल्स, हेंस इट इज कॉन्ग्रुएंट, इट इज इक्वल इन लेंथ. सो इसकी रीजन आ गई कॉमन. नाउ स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ साइड साइड साइड, if the three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other triangle, then we can conclude that
then it is proved that this is confirmed that both the triangles are equal. आप देख सकते हैं जो दो triangles की correspondence ली थी, now we can say according to side postulate that both the triangles are congruent. If both the triangles are congruent, then their corresponding each and every corresponding elements are congruent. जो रिमेनिंग हमने जो एंगल और साइड डिस्कस नहीं किया, आपको पता है किसी ट्राइंगल में 6 एलिमेंट्स होते हैं, हमने 3 साइड्स को डिस्कस किए, तीनों एंगल्स को डिस्कस नहीं किया. बट अगर दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, जैसे कि हमने प्रूव कर दिया साइड पोस्टुलेट के अकॉर्डिंगली, तो इट इज कंफर्म नाउ कि जो उसके तीनों बाकी एंगल्स हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं किया वो भी कॉन्ग्रुएंट हैं. स्टूडेंट्स, हम सिर्फ उन एंगल्स की बात करेंगे जिनसे हम कंसर्न हैं, जिससे हमारा थ्योरम प्रूव हो जाएगा, और वो हमारे पास है एंगल 1 और एंगल 2. आप देख सकते हैं both the triangles are congruent, hence its angle 1 is congruent to angle 2, जिसको हम कह सकते हैं कि एंगल n is congruent to angle n, क्योंकि n जो है वो कॉमन वर्टेक्स है और दोनों ट्राइंगल्स के अंदर सेम एंगल को शो कर रहा है, या दोनों एंगल्स को जो है वो n शो कर रहा है. So hence student angle 1 and angle 2 are congruent. But this is not our full and final answer. This is not our target. हमने एंगल 1 और एंगल 2 को प्रूव कर लिया, इससे थ्योरम प्रूव नहीं हुआ, क्योंकि हमारे पास 2 प्रूव में लिखा हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 न सिर्फ आपस में इक्वल है, बल्कि हमने प्रूव करना है कि बोथ आर राइट एंगल्स. अब नेक्स्ट जो हमारा टारगेट है वो ये है कि हम एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को क्या प्रूव करेंगे, राइट एंगल प्रूव करेंगे. कैसे प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स? नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है वो है कि बट मेजर एंगल 1 प्लस मेजर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल 1 और एंगल 2 बोथ का जो दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री है. दैट इज दीज आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, हमें कैसे पता चला कि ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल? हमें तो यही नहीं पता कि ये दोनों 90 भी हैं या नहीं. हमें बताया किसने, सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट, जो मैं अपनी एक प्रीवियस वीडियो के अंदर बतौर खास डिस्कस कर चुका हूं बिफोर स्टार्टिंग द थ्योरम्स, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट होना बहुत जरूरी है. ये यहां पर आपको सपोर्ट करेगा. किस तरह? सप्लीमेंट्री एंगल पोस्टुलेट कहता है कि इफ टू एंगल्स आर एडजेसेंट, इफ टू एंगल्स आर, जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं कि एंगल 1 एंड एंगल 2 बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स, बोथ आर एडजेसेंट एंगल, क्योंकि इनका कॉमन एंड पॉइंट है, कॉमन आर्म मौजूद है बीच में. ठीक है. इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर, if there are two adjacent angles and their non common arms, आप देख सकते हैं these are non common, जिनको मैंने लेबल किया, यहाँ पे क्रॉस किया, AN और BN both are lying on a line. हमें पता है कि AB is a line segment, so definitely इनके non common arms are lying on a line, hence they are supplementary. ये supplementary angle postulate कहता है हमें. So non-common arms which are A and B and these are in red color, both are on a straight line. So confirm that angle 1 and angle 2 both are supplementary. ये हमें बता रहा है कौन? supplementary angle postulate बता रहा है. Now students, इनके supplementary angle होने से हमें कैसे पता चलता है कि ये दोनों right angle हैं? मैं आपके सामने कुछ examples देखता हूँ supplementary angle की. फॉर एग्जाम्पल 60 डिग्री में 120 डिग्री ऐड कर रहा हूं, सम इज 180 डिग्री. इसी तरीके से मैं आपके सामने जो है वो 110 डिग्री के अंदर जो है ऐड कर रहा हूं 70 डिग्री को, तो सम इज 180 डिग्री. नाउ मैं 90 को 90 में ऐड कर रहा हूं, तो हियर अगेन द सम इज 90 प्लस 90 इज 180 डिग्री. ऑल दीज थ्री आर डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स. अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमारे पास है सप्लीमेंट्री, और ऊपर जो हमारे पास जो हमने रिजल्ट निकाला एंगल 1 एंड एंगल 2 आर इक्वल. हम इन दोनों सिचुएशंस को देखते हैं कि वो कौन सी एग्जांपल है जिसमें एंगल 1 एंगल 2 के न सिर्फ इक्वल है बल्कि सप्लीमेंट्री एंगल भी है. आप देख सकते हैं कि 60 और 120 सप्लीमेंट्री तो हैं, बट बोथ आर नॉट इक्वल. 60 इज नेवर इक्वल टू 120 डिग्री. 110 and 70 both are supplementary angles, but 110 is not equal to 70 degree. The third example fulfills both the conditions, that is 90 is the supplementary angle of 90 degree and 90 is equal to 90 degree. So ये जो बात है, ये जो example है, ये इन दोनों को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है कि जहां पर न सिर्फ एंगल सप्लीमेंट्री हैं बल्कि एक दूसरे की इक्वल भी हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन है. इन दिस वन एंड ओनली वन कंडीशन
The angles are not only equal but also the supplementary. Hence, it is proved that angle 1 and angle 2 both are right angles. And if angle 1 and angle 2 both are right angles, then it is confirmed that ON is perpendicular to chord AB. ठीक हो गया students? Very interesting theorem is ended. I hope you people enjoyed this lecture in which I discussed theorem 9.2 for class 10th. Inshallah theorem 9.3 के साथ मिलते हैं अपनी next वीडियो के अंदर. Till then, take care. Allah Hafiz.